السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیا انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہر 3 ماہ میں انتظامیہ کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کریں۔ محکمہ تال میل سے کام کریں۔ عہدیداروں کو چیف منسٹر کی ہدایت، 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ۔ BRS مقدموں اور دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی۔ KCR کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے ڈرامہ بازیاں کی جا رہی ہیں۔ BRS لیڈرز کی کانگریس حکومت پر برہمی۔ سائبرآباد کمسٹریٹ حدود میں گزشتہ سال کے مقابلے جرائم کی تعداد میں معمولی کمی۔ سائبر کرائم، ڈیجیٹل فراڈ اور قتل واقعات میں کمی۔ کمشنر پولیس اویناش موہنتی نے جاری کی سالانہ رپورٹ۔ لاپرواہ ڈرائیونگ کا ایک اور بدبختانہ واقعہ۔ اتاپور حدود میں DCM ڈرائیور نے پولیس کانسٹیبل کو روند ڈالا، برسر موقع موت۔ محبوب نگر ضلع کے ڈپٹی ٹرانسپورٹ کمشنر کشن نائک کی قیام گاہوں اور جائیدادوں پر ACB کے دھاوے، 100 کروڑ سے زائد کے غیر محسوب اثاثوں کا انکشاف۔ اور مڈپلی پولیس اسٹیشن حدود میں عاشق کی مدد سے شوہر کا قتل،
3 मुलजिमीन गिरफ्तार। और अब पेश है खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो हर 3 माह में इंतजामिया की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। ओहदेदारों के एक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ओहदेदार हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्राम को आवाम तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कामयाबी के 2 साल मुकम्मल किए। ये अवामी हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में पेश करदा विजन दस्तावेज का भी जिक्र किया और कहा कि रियासत जुमरा क्यूर, प्यूर और रेर के तहत 2047 तक 3 खरब अमेरिकी डॉलर की मईशत की हामिल होगी। अपने इन जुमलों की मजीद तशरीह करते हुए उन्होंने कहा कि तरजीही बुनियाद पर एनर्जी, एजुकेशन, इरिगेशन और हेल्थ के शोबों पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो अपने तहत के सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदारों से हर माह कारकर्दगी की रिपोर्ट हासिल करें और उन्हें सबमिट करें और उनकी कारकर्दगी का जायजा लेते हुए हुकूमत को मुतल्ला करें। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तालमेल पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महकमे जहां जरूरत हो पूरे इखलास के साथ एक दूसरे से ताउन करें ताकि दरकार नताइज हासिल हो सकें। उन्होंने महकमों के दरमियान तालमेल से मुतालिक एक हैयत तरकीबी की जरूरत पर जोर देते हुए ओहदेदारों से कहा कि इस हैयत तरकीबी को नाफिज करें और इसके जरिए कारकर्दगी को यकीनी बनाएं। तेलंगाना असम्बली का सरमाई इजलास 29 दिसंबर से शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीनी वज़रा का इजलास हुआ। इजलास में असम्बली इजलास को 29 दिसंबर से चलाने का फैसला लिया गया। मुजवज़ा असम्बली इजलास में कृष्णा गोदावरी के पानी के मसाइल, मजालिस मुकामी के इंतखाबात और दूसरे अहम उमूर पर मुबाहिस का इम्कान है। हाल ही में बीआरएस सरबराह केसीआर की तरफ से हुकूमत पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स को लेकर तनकीद की गई थी और इसी के तनाजुर में इजलास के हंगामा ख़ैज़ होने का इम्कान है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि केसीआर के सवालों का जवाब देने के बजाय वज़रा और वज़ीर आला ड्रामाबाजी कर रहे हैं। बीआरएस लीडर्स के खिलाफ मुकदमों की बात की जा रही है। बीआरएस मुकदमों और धमकियों के आगे नहीं झुकेगी। तेलंगाना के किसानों की लड़ाई नहीं रुकेगी। कांग्रेस हुकूमत 420 वादों से डरती है, इसलिए इंतखाबात कराने से भाग रही है। केटीआर ने चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इंतखाबात कराएं। केटीआर ने नलगुंडा में बीआरएस के हामी उम्मीदवारों की पंचायत इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला को निशाना बनाते हुए केटीआर ने कहा कि वो सिर्फ तफरीह की सियासत कर रहे हैं। पीछे से खबरों को लीक करना बंद करें, कैमरे के सामने आएं और बताएं कि वो कैसा मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। शिकंडी की सियासत बंद करें। केटीआर ने दरियाए कृष्णा के पानी के ताल्लुक से तेलंगाना के साथ की जा रही नाइंसाफी और रियासती वज़रा की लाइल्मी पर भी तनकीद की। उन्होंने नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाले वज़रा को भी निशाना बनाया। उत्तम कुमार रेड्डी ने आबपाशी के मसाइल पर कहा कि वो तैयारी करके नहीं आएंगे, कल जवाब देंगे। इससे जाहिर होता है कि वज़रा में रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट से मुतालिक मालूमात का फुकदान है। केटीआर ने ऐलान किया कि जब तक कृष्णा के पानी से नलगुंडा और महबूबनगर के किसानों को इंसाफ नहीं मिलता, बीआरएस की जिद्दोजहद जारी रहेगी। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली हरीश राव ने साबिक वज़ीर आला केसीआर की इतवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत को एक बार फिर तंज का निशाना बनाया है। हरीश राव ने कहा कि अपनी 25 साला सियासी जिंदगी में उन्होंने ऐसे किसी वज़ीर आला को नहीं देखा जो रात 9:30 बजे मीडिया के साथ गैर रस्मी बात करते हुए वजाहत करता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वास्तव के खौफ से सेक्रेटेरिएट की सीढ़ियां नहीं चढ़ते, वो सिर्फ कमांड कंट्रोल रूम तक महदूद होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि हालिया पंचायत इंतखाबात में बीआरएस के हामी 4000 सरपंचों की कामयाबी के बाद रेवंत रेड्डी को अब अपनी शिकस्त का खौफ होने लगा है। कोऑपरेटिव इंतखाबात कराने के बजाय नामजदगियों के जरिए कांग्रेस कारकुनों की तकर्रुरी की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली में बीआरएस को दूसरी जमातों से कम वक्त दिया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि असेंबली के मुजव्वज़ा इजलास में हुकूमत को बेनकाब करेंगे। बीआरएस लीडर का यह भी कहना था कि यह हुकूमत नहीं बल्कि कंसल्टेंसी कंपनी है जो दलालों के मशवरे पर चल रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलास खत्म होते ही फोन टैपिंग मामले में उन्हें नोटिस देने की बात की जा रही है और ये एक बड़ा मजाक होगा।
انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف پہلے سے 300 مقدمے ہیں، ایک اور مقدمے سے وہ نہیں ڈرتے۔ ہماری قربانیوں کی تاریخ رہی ہے اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلنگانہ حکومت اور عظیم تر بلدیہ حیدرآباد GHMC نے جائیداد ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے راحت کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے مالی سال 2025-26 کے لیے ایک وقتی اسکیم OTS کا اعلان کیا ہے، جس میں پراپرٹی ٹیکس کی بقایا جات پر جمع سود پر 90% چھوٹ کی پیشکش کی گئی ہے۔ مکمل ٹیکس پر جمع سود پر 90% کی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اس سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں تمام جائیدادیں رکھنے والے ٹیکس دہندگان استفادہ کر سکتے ہیں۔ می سیوا کے علاوہ مائی GHMC ایپ، آن لائن payments.ghmc.gov.in پر رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ سہولت 31 مارچ 2026 تک رہے گی۔ BRS کے سابق وزیر جگدیشور ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ فون ٹیپنگ کے معاملے پر KCR، KTR اور ہریش راؤ کے خلاف نوٹس جاری کی جا سکتی ہے۔ جگدیشور ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت کی تشکیل سے ہی فون ٹیپنگ کا رونا جاری ہے۔ کالیشورم کو لے کر بھی ایسا ہی رونا رویا گیا، لیکن عدالت نے کہا کہ اس کی مرمت کی جائے۔ KCR کے خلاف صرف ایک طرح کی سازش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم و BJP لیڈر اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش کے سلسلے میں اٹل جی سمرتی سمیلن کا نارائن گوڑا میں انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ، BJP MP ڈاکٹر کے لکشمن اور BJP کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے BJP کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ قانون ساز اسمبلیوں میں عوامی نمائندوں کے درمیان بحث و اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اسمبلی کے باہر اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر تمل ناڈو اسمبلی میں سابق وزیر اعلیٰ جے للیتا کے ساتھ پیش آئے واقعے کا حوالہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی سیاست میں بھی اپوزیشن اور حکومت کو تنقید کو قبول کرنا چاہیے اور ذاتی حملے نہیں کرنے چاہیے۔ تلنگانہ جاگرتی کے لیڈر کے کویتا نے دادری بھونگیری ضلع کے دورے کے دوران راستے میں حادثے کا شکار باپ اور بیٹی کو اپنی گاڑی میں مقامی ہاسپٹل منتقل کیا۔ مقامی ڈاکٹرز نے کویتا کو بتایا کہ دونوں باپ اور بیٹی کی حالت بہتر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں باپ بیٹی بائک سے گر گئے تھے۔ کویتا جنم باٹا پروگرام میں شرکت کے لیے ریاست کے مختلف اضلاع کا دورہ کر رہی ہیں۔ سائبرآباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں سال 2025 میں جرائم کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے معمولی کمی ہوئی ہے۔ کمشنر پولیس اویناش موہنتی نے آج سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 2024 میں 37,699 کیسز درج ہوئے تھے اور اس سال 37,243 کیس درج ہوئے ہیں۔ 2025 میں 7,636 سائبر جرائم درج کیے گئے، جبکہ سال 2024 میں 11,914 کیس درج ہوئے تھے۔ 2025 میں سائبرآباد کے حدود میں 5,527 سڑک حادثے ہوئے ہیں۔ جہیز ہراسانی کے اس سال 3,114 کیسز درج ہوئے ہیں۔ سرقے کی وارداتوں کی 5,527 کیسز اس سال درج کیے گئے۔ ڈیجیٹل اریسٹ اور دھوکہ دہی کے اس سال 117 کیسز درج ہوئے ہیں۔ 15,22,25,000 روپے کی رقم لوٹی گئی۔ اس سال بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ سال 2024 میں جہاں 4 کیسز درج ہوئے تھے، 2025 میں 53 کیسز درج ہوئے ہیں۔ سائبر کرائم کے ذریعے 404 کروڑ کی رقم لوٹ لی گئی، جبکہ 2024 میں تقریباً 800 کروڑ روپے لوٹے گئے تھے۔ NDPS کیسز میں اضافہ بتایا گیا ہے۔ 2025 میں 575 کیسز درج ہوئے ہیں اور 1,228 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 2025 میں 1,524,900 کلو ڈرگز ضبط کیے گئے۔ پولیس نے 2,730 کلو ضبط کیے گئے منشیات کو ضائع کیا، جس کی قیمت 25 کروڑ 44 لاکھ روپے تھی۔ قتل کے واقعات میں 2024 کے مقابلے اس سال کمی ہوئی ہے۔ 2024 میں قتل کے 132 واقعات پیش آئے تھے، اس سال 113 واقعات پیش آئے ہیں۔ Thing that year manam chusam is there has been a substantial reduction in cyber crime. So last year maaki 11,914 cyber crime unte
close to 12,000. ఈసారి ఇట్స్ అబౌట్ 7,600. అబౌట్ 35 to 40% డిక్రీజ్ ఇన్ సైబర్ క్రైమ్ ఉంటుంది. అండ్ దానికి నో వే వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద క్రెడిట్ ఫర్ ఇట్. దట్ క్రెడిట్ హ్యాస్ టు బి షేర్డ్ విత్ ఈచ్ వన్ సిట్టింగ్ హియర్. దట్ క్రెడిట్ హ్యాస్ టు బి షేర్డ్ విత్ ద సొసైటీ అట్ లార్జ్, ఎవ్రీబడి. హియర్ మీకు రఫ్లీ we lost about 793 crores in Cyberabad. 793 crores last year. So year మీరు చూస్తే that has come down to about 404 crores. So that's almost I think 50% reduction, close to. క్రైమ్లో మ్యాక్సిమం చూస్తే మీకు ఇదే పార్ట్ టైం జాబ్ ఫ్రాడ్, ట్రేడింగ్ ఫ్రాడ్స్ ఇవే ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దిస్ మేక్స్ అప్ ద బల్క్ ఆఫ్ ద సైబర్ క్రైమ్. మొత్తం తెలంగాణ మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ సైబరాబాద్లో కూడా చాలా ఎక్కువ విజిల్ డ్రగ్స్ పైన అయింది కాబట్టి ఆ పెద్ద కన్సైన్మెంట్స్ తీసుకురావడానికి కొంచెం కేర్ఫుల్ అవుతున్నారు. చిన్న కన్సైన్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. సో దాని మీద వీఆర్ టేకింగ్ యాక్షన్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ సీజర్స్ మీ దగ్గర కూడా ఉన్నాయి. ఇయర్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ లాగా చాలా హెవీ క్వాంటిటీ సీజ్డ్ డ్రగ్స్ డిస్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. గ్రేవ్ క్రైమ్స్ మీరు చూస్తే దెర్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ హెడ్స్. దేర్ ఈజ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే మర్డర్ ఫర్ గెయిన్ చూస్తే కొంచెం డిక్లైన్ ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ 132 ఉంటే 113 ఉంది. డెకాయిటీ, రాబరీ బోత్ ఆర్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ చూస్తే ఒక మేబీ 5% इंक्रीज ఉంది. 111 ఉంటే 118 అయింది. हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने एक बार फिर अवाम को मुख्तलिफ एजेंसियों का नाम लेकर धमकियों से खबरदार किया है. अपने बयान में कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सीबीआई नारकोटिक्स का नाम लेकर फ़ोन किए जाते हैं. यहाँ तक कि पुलिस की वर्दी में भी कुछ लोग अपनी फ़ोटो लगाकर फ़ोन करते हैं. ऐसे लोगों के झांसे में ना आएं और न ही परेशान हों. फौरी 1930 पर कॉल करें. अगर कोई कॉल करके रकम का मुतालबा करता है तो इसे रकम देने से या फिर यूपीआई के ज़रिए रकम मुंतकिल करने से गुरेज करें. हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरने वाले तैयारों को धमकियामेज ईमेल्स का सिलसिला जारी है. आज भी लंदन से आने वाली ब्रिटिश एयरवेज में बम रखे जाने का ईमेल वसूल हुआ था. ताहम पायलट ने सलामती के साथ तैयारे को एयरपोर्ट पर उतारा. तैयारे में 200 मुसाफिरीन सवार थे. बम स्क्वाड ने मुकम्मल तलाशी ली. ताहम ये तल्ला झूठी साबित हुई. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को कुर्मागोड़ा डिवीजन का तफसीली दौरा किया. रुकन असम्बली ने डिवीजन में जारी सड़कों, ड्रेनेज और सीवरेज के कामों का मुआयना किया. जाफर हुसैन मेराज ने मुकामी अवाम के भी मसाइल की समाअत करते हुए ओहदेदारों को उनकी जल्द यकसुई की हिदायत दी. मुतल्लिका मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे. सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने पुरानी हवेली के इलाके में जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया, जिसका अवाम को अरसे दराज से इंतजार था. मीर जुल्फ़िकार अली ने गुत्तेदारों को कामों को जल्द पूरा करने की ताकीद की है ताकि राहगीरों को राहत हो. दौरे में उनके हमराह रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग साबिक़ सदर मजलिस की सालाना बरसी के सिलसिले में हाई स्कूल्स और जूनियर कॉलेज के तलबा तालिबात के लिए कायद मिल्लत तकरीरी मुकाबले दारुस्सलाम हैदराबाद में मुनक्किद हुए, जिसकी सदारत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे. तकरीरी मुकाबलों का उन्वान कायद मिल्लत और असर हाजिर था, जिसमें इनाम अव्वल गोल्ड मेडल MA कदीर सिद्दीकी ज़ेर तालीम दूधबावली हाई स्कूल को दिया गया, जबकि इनाम दुवम व सुवम बेतरतीब मोहम्मद वसी रैयान सेंट जॉर्जिस स्कूल एबट्स को सिल्वर मेडल और हारून मोहम्मद ज़ुबैर मुतालिम सेंट्रल पब्लिक स्कूल खिदवत को इनाम सुवम दीनी कुतुब दिए गए. तालिबात के ज़ुमरे में सफ़िया को गोल्ड मेडल, सैयदा मरियम फ़ातिमा को इनाम दुवम सिल्वर मेडल और सैयदा फ़राह नाज इनाम सुवम दीनी कुतुब के मुस्तहक़ करार पाए.
महकमे बरकी की जानिब से चंचलगुड़ा के मुख्तलिफ इलाके जात में बरकी सरबराही के मेंटेनेंस के काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 24 दिसंबर को बरकी सरबराही में खलल पड़ेगा। बरोज़ चाहरशंबा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अजीम साइकिल टैक्सी छावनी, 82 बस स्टॉप, बाग जहारा, याकूतपुरा नाला और इसके अतराफ अकनाफ के इलाके मुतासिर होंगे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में रुकन बलदिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने GHMC के अहदेदारों के हमराह बिरयानी शाह टेकरी और गुलशन नगर का दौरा किया। इस सिलसिले में मुकामी अफराद की जानिब से सड़क की तामीर के लिए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को शिकायतें मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से 50 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के कामों को मंजूरी मिली है। बिरयानी शाह टेकरी और गुलशन नगर का इलाका बालाई मुकाम पर होने की वजह से मटेरियल फराहम करने के लिए मुश्किलात पेश आ रही थीं। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। अतापुर के हुदूद में लापरवाह DCM ड्राइवर ने बाइक सवार कांस्टेबल को रौंद डाला। इस हादसे में टोली चौकी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल अब्दुल सत्तार बरसरे मौका जाँ बहक हो गए। यह हादसा पिलर नंबर 191 के पास पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि अब्दुल सत्तार ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहे थे। DCM ड्राइवर मुकाम वाक़े से फरार हो गया था। ताहम इत्तला है कि मुकामी अवाम ने 5 किलोमीटर के ताक़ुब के बाद उसे पकड़ लिया। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महबूबनगर किशन नायक तकरीबन 100 करोड़ रुपए के असासजात का मालिक है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुसद्दक़ा इत्तलात पर इस ओहदेदार के दफ्तर, मकानात, रिश्तेदारों के यहाँ बैक वक्त छापेमारी और बेदरीग दौलत, सोना, हीरे जवाहरात के अलावा आराजियात, मकानात की दस्तावेजात जब्त किए हैं। इस ओहदेदार के करीबी दोस्त के घर से तकरीबन 30 किलो सोना जब्त किया गया। हैदराबाद, महबूबनगर, रंगारेड्डी और दीगर अजला में इस ओहदेदार के मकानात, उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी धावे किए गए। निजामाबाद में 30 एकड़ आराजी, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के दस्तावेजात भी ACB टीम के हाथ लगे। ज़राए के मुताबिक इस ओहदेदार ने अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा बेशुमार असासजात हासिल किए हैं। ACB के धावे अभी जारी हैं। हैदराबाद की मिडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में 11 दिसंबर को हुए एक शख्स के कत्ल में पुलिस ने मकतूल की बीवी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 45 साल अशोक और 36 साल पूर्णिमा की 12 साल पहले शादी हुई थी और उन्हें एक 11 साल बेटा है। ये जोड़ा वृंदावन कॉलोनी में मुकीम था। अशोक खानगी कॉलेज में मुलाजिमत किया करता था, जबकि पूर्णिमा घरों में ट्यूशन दिया करती थी। हाल ही में पूर्णिमा की 22 साल महेश से मुलाकात हुई और दोनों में ताल्लुकात कायम हो गए। पूर्णिमा और महेश ने अपने ताल्लुकात में अशोक को कांटा समझकर उसे हटाने का मंसूबा बनाया। 11 दिसंबर को अशोक जब मुलाजिमत से घर लौटा, पूर्णिमा उसके आशिक महेश ने एक और साथी साई की मदद से साड़ी से गला दबाकर अशोक का कत्ल कर दिया और फिर पुलिस को इत्तला दी गई कि दिल का दौरा पड़ने से अशोक की मौत हुई है। लेकिन अशोक के अफराद खानदान ने शुबहात का इजहार करते हुए जब पोस्टमार्टम पर जोर दिया तो ये इंकशाफ हुआ कि गला दबाकर अशोक का कत्ल किया गया। तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते जराइम के तनाजुर में बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में मुतल्लिका पुलिस की तरफ से रात के औकात में पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से रात में गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि अवाम में अमन कानून का एतमाद बरकरार रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस ने सरपरस्तों पर भी जोर दिया कि रात के औकात में अपने बच्चों को गैर जरूरी घूमने से बाज रखें। हम लोग जाके सोना है। डिक्की बताओ मेरा, डिक्की बताओ। मंजिल है, डिक्की ओपन
ममनुआ बेटिंग ऐप्स की तशहीर के सिलसिले में मंगल को सीआईडी दफ्तर में फिल्म अदाकार मोहन बाबू की दोख्तर मंशू लक्ष्मी से पूछताछ की गई। ज़राए के मुताबिक बेटिंग ऐप की तशहीर के लिए फीस की वसूली से मुताल्लिक भी सवाल किए जाने की तल्ला है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मंशू लक्ष्मी से इस सिलसिले में पूछताछ की गई थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ममनुआ बेटिंग ऐप्स के मामले में इससे पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता राना गोबाटी, विजय देवरकोंडा और प्रकाश राज से भी पूछताछ कर चुकी है। जहीराबाद कौमी शाहरा 65 कोहीर के करीब कानगी ट्रैवल बस बेकाबू होकर सड़क से फिसलकर झाड़ियों में उलट गई। बताया जाता है कि बस हैदराबाद से आज सुबह कर्नाटक जा रही थी। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त बस में 36 मुसाफिरीन सवार थे। मुकामी अवाम ने मुतासरा बस से मुसाफिरीन को बाहर निकाला। जख्मियों को जहीराबाद के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हर 3 माह में इंतजामिया की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करें। महकमे तालमेल से काम करें। ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। 2 साला कारकर्दगी का जायजा। बीआरएस मुकदमों और धमकियों से नहीं डरेगी। केसीआर के सवालात का जवाब देने के बजाय ड्रामाबाजियां की जा रही हैं। बीआरएस लीडर्स की कांग्रेस हुकूमत पर बरहम। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले जराइम की तादाद में मामूली कमी। साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड और कत्ल वाक़यात में कमी।
कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने जारी की सालाना रिपोर्ट। लापरवाह ड्राइविंग का एक और बदबख्ताना वाकया। अत्तापुर हुदूद में डीसीएम ड्राइवर ने पुलिस कांस्टेबल को रौंद डाला, बरसरे मौका मौत। महबूबनगर जिले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किशन नायक की क़यामगाहों और जायदादों पर एसीबी के धावे। 100 करोड़ से जायद के गैर महसूब असासों का इंकशाफ। और मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में आशिक की मदद से शौहर का कत्ल, 3 मुल्जिमीन गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।